A very good afternoon to you all students. This is my first video on English tutorials. So some of you must be aware of me, who am I? Some of you must not be knowing who am I. So let me introduce myself first. I'm Brijesh Kumar Singh, PGT English. Currently I'm working as a principal in an ICSC school. So now I have decided to go for English tutorials for class 11th and 12th, and from today onwards I'll keep on updating regular videos on different topics of class 11th and 12th, which will include literature and grammar part both as per the CBSE syllabus. So today I'm starting with a very emotional poem which is now in your curriculum in class 12th. That is My Mother at 66. In this first video, I will not explain poem paragraph wise or the line by line, but just I'll conclude the poem. I will summarize the poem, what is the poem all about. And in the next video, I'll explain poem by paragraph wise and explain also the use of poetic devices and the meanings of different words and whatever the writer exactly want to say line by line. I'll explain you in the next. So in this first video, I'm just trying to tell you about this poem. This poem is an emotional narration of love between a mother and a child. A love, a bond which remains same whatever the age is, irrespective of age and time, it remains same. Maybe sometime because of some other reason we are not, the children are not able to pay attention to their parents, or parents are not able to pay attention to their children, but their love or their bonding between them is not affected at all. So it's a very emotional poem which is based on a true incident which is narrated in a form of poem. The poet Kamala Das is a well-known English laureate. She has written so many novels, stories with the pen name of माधवी कुट्टी. कमला दास जी ने अपने इस पोयम में जो फीलिंग्स उनकी हैं अपनी मदर को लेकर के उसे एक्सप्लेन किया. See friends, I am deliberately using English, Hindi and English both. So if someone is not able to get my points exactly in English, may be able to get in Hindi also. So I'm using both the languages to make comfortable, convenient for everyone. तो कमला दास जी एक अपनी मदर को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही केयरिंग हैं, लेकिन कुछ पर्सनल लाइबिलिटीज़ से, कुछ प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ की वजह से वो उनकी केयर नहीं कर पा रही. एक बार वो कुछ दिनों के लिए अपने घर गई हुई हैं, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ स्टे करती हैं, अच्छा टाइम बिताती हैं. उसके बाद वो वापस जा रही होती हैं चेन्नई एयरपोर्ट, जहाँ से उन्हें कोचीन एयरपोर्ट, जहाँ से उन्हें फ़्लाइट लेके चेन्नई जाना है कुछ काम से. रास्ते में वो पीछे बैठी हुई हैं, उनकी मदर भी पीछे बैठी हुई हैं, और वो वहाँ पर अपनी मदर को देख करके उनके बारे में सोच रही हैं कि इस स्टेज में जब मेरी माँ को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी हेल्प की, मेरी केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अनफॉर्चुनेटली मुझे उन्हें छोड़कर जाना पड़ा. इट्स अ पेनफुल अकाउंट फॉर हर, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है. कुछ ऐसी प्रोफेशनल मजबूरी है जिसकी वजह से उन्हें जाना ही पड़ेगा. और इस पूरे टाइम, जितना टाइम उन्होंने उस कार में ट्रैवल किया अपनी माँ के साथ, वो अपनी बचपन की मेमोरीज़ के बारे में सोचती हैं, अपनी मदर की एक्सपीरियंसेस के बारे में. हालांकि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें डिटेल में पोयम में नहीं लिखी, बिकॉज पोयम का साइज फिर बहुत बड़ा हो जाता और पोयम फिर वो पोयम ना होकर स्टोरी हो जाती. बट यू कैन इमेजिन कि वो एक पूरी कार ट्रैवलिंग के दौरान अपनी माँ के बारे में ही सोच रही. कुछ समय के लिए उनका अपने ध्यान को अपनी माँ से वो अलग करना चाहती हैं. गाड़ी के बाहर झांक के देखती हैं, जो पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उन पे ध्यान लगाना चाहती है, लेकिन घूम फिर करके ध्यान फिर माँ पर आ जाता है. क्यों? क्योंकि वो एक अटैचमेंट है. वो एक अटैचमेंट है अपनी माँ के साथ जो उनको उनसे जोड़ कर रख रहा है. और इस पोयम में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जब हमारे माता पिता
एल्डरली एज में आ जाएं, पेरेंट्स एल्डरली एज में आ जाएं, तो हमें उनका ध्यान रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए, क्योंकि वो हमसे उस वक्त सिर्फ यही चाहते हैं। और पोएम के एंड में पोएट ने एक बड़ी ही इमोशनल सी फीलिंग डाली है वहाँ पर, और वो फीलिंग कुछ इस तरह की है कि वो कोचीन एयरपोर्ट पे खड़ी हैं, एंट्री पॉइंट से वो एंटर कर चुकी हैं। अब जो विजिटर आते हैं उनके लिए आप जानते हैं एयरपोर्ट पे एक फ़िक्स पॉइंट होता है, उसके बाद वो एंटर नहीं कर सकते, उसके बाद सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं जिन्हें ट्रैवल करना है। तो उस पॉइंट से वो खड़ी होकर अपनी मदर को देख रही हैं। अंदर से बहुत पेनफुल फीलिंग है उनके अंदर। कमला दास बहुत पेनफुल फील कर रही हैं कि मैं इस समय में अपनी मदर को छोड़कर जा रही हूँ, और उन्हें शायद ऐसा भी कहीं लग रहा है कि क्या पता जब तक वो कुछ समय बाद लौटे शायद उनकी माँ से उनकी मुलाकात हो या ना हो, क्योंकि माँ उनकी उस उम्र के उस दौर में है जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस पेनफुल फीलिंग को भी कमला दास अपने अंदर दबा करके, मुस्कुरा करके अपनी माँ को बाय करती हैं, सी यू सून बोलती हैं, और उस चीज़ को वो एक्सप्लेन करती हैं कि वो मुस्कुरा कर क्यों बोल रही हैं। क्योंकि अगर कहीं उनकी माँ ने उस दुख को पढ़ लिया उनके चेहरे पर, तो वो तो चली जाएंगी, मगर उनकी माँ उस दुख के साथ बहुत लंबे समय तक रहेंगी। तो वो अपनी माँ को बिल्कुल भी इमोशनली डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, इसलिए बड़े खुश मिजाज मन से उन्होंने उनको बाय किया और शी वेंट फॉर हर ट्रैवल। ये है ओवरऑल पोएम की समरी। बाकी जो पोएम है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइन बाय लाइन पढ़ करके एक्सप्लेन करूँगा, और पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ भी बताऊँगा। उसमें कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस भी आपको समझाऊँगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, कीपिंग इन एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोएम। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम आप जब आइए। तो मुझे आपसे उम्मीद है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पोएम को पढ़ करके मुझे ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो टिल देन हैव अ ग्रेट डे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।